Good morning, all of you. So today, what we are going to do, we will continue our yesterday's chapter. Yesterday, we are talking about the emergence of new ideas. That is our 13th chapter. Yesterday, we are read about Buddha's his teaching, his eightfold path. Right. So yesterday we read about Buddha's. Now today we will read about the life at the Sangh. Sangh is organization where the people leave their houses, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने घर छोड़ देते हैं और सच ढूंढने की राह पे निकल पड़ते हैं. कल हमने इसके बारे में पढ़ा था. आज उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. Now, life at the Sangh. People who join the Sangh meditated most of the time. They lead a very simple life. During fixed hours, they visited cities and villages to beg for food. अब बात ये आती है कि जब ये संघ में रहते हैं तो ये खाते कहाँ होते, रहते कहाँ होंगे, राइट. तो ये लोग जब संघ में रहते हैं तो ये एज ए भिखूज मांग कर ये खाना खाते हैं, राइट. They were the teachers who taught others and who helped one another. People from all the communities joined the Sangh. There were Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers and slaves. इनकी कम्युनिटी में कौन से लोग होते हैं मेनली? ब्राह्मण, क्षत्रियास, मर्चेंट जो व्यापार करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, लेबर्स, राइट, बार्बर और स्लेव्स. स्लेव्स हो गए हमारे गुलाम. ठीक है. This led to the development of the varied literature in the form of teaching of the Buddha and the beautiful poems describing experience in the Sangh. संघ में ये क्या करते थे? पोएम्स वगैरह गाते थे. उन पोएम्स में क्या होता था? उनके संघ के बारे में होता था, लोगों की कम्युनिटीज के बारे में होता था कि कैसे एक मनुष्य अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के अपना घर त्याग कर सच की राह पर निकल पड़े. ठीक है. गॉट इट? नो. एक बार हम इसका असेसमेंट करें. अकॉर्डिंग टू बुद्धा, how can we end our desire and suffering? According to Buddha, how can we end our desires and suffering? How will we end our desire and suffering? By following the path of ahimsa, by following the middle path, by following the path of Triratnas and by following the Vinay Pitaka. What is the answer? By following the path of ahimsa, by following the middle path, by following the path of Triratnas and by following the Vinay Pitaka. What is the answer? Tell me the answer first. Yes, Trishika. परी, कल हमने बात पढ़ी थी कि कैसे डिजायर्स को हम छोड़ सकते हैं तो हमारी सफरिंग्स भी खत्म हो जाएगी. हाउ? By following the path of ahimsa. What was the answer? Ahimsa. Option A. Take the correct option. Option A. People of all varnas were attracted to Buddhism due to their idea of equality, superiority, purity and democracy. What was the answer? B. It's A. Equality. What was the answer? Equality. Now, after the Buddha, we will read about the Jainism. क्या रीड करेंगे? Jainism.
Vardhaman Mahavira was the 24th and the last Tirthankar. Rishabdev was the first. Who was the last Tirthankar of Jainism? Vardhaman Mahavira. And who was the first Tirthankar of Jainism? ऋषभदेव. मेक इट अंडरलाइन. ये आपका एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है. The first ideals of both from the basis of Jainism. Mahavira was a Kshatriya prince of the. कहाँ के राजा थे ये? लिच्छाविस. क्या आएगा? लिच्छाविस. Mahavira was a Kshatriya prince of the Lichavis, a clan that was associated with Vajji Sangha. Mahavira was born at Kundargram near Vaishali in Bihar. Make it underline. कुंदरग्राम, इसको कुंडलपुर भी कहा जाता है. कुंदराग्राम कहां पर है? ये नियर वैशाली ए बिहार. कर लिया इसको अंडरलाइन. ये भी क्षत्रिय थे, ये भी राजा थे. Truth reveal. Truth reveal. On reaching the age of 30, Mahavira renounced his home and went to live in a forest. At the age of 30, क्या किया महावीरा ने? अपना घर छोड़ दिया और कहाँ निकल पड़े? Forest. To attain knowledge, he wandered from place to place alone and lead a tough and lonely life for about 12 years. अपने घर से निकल तो गए और सच की राह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकेली ही जिंदगी जी. बहुत मुश्किल वाली जिंदगी जी. उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और ये 12 इयर्स तक इधर से उधर घूमते रहे. Finally, he attained alignment and through his knowledge, he conquered both sorrow and happiness. He was regarded as Jena, the great conqueror, and his followers were called Janas. Mahavira traveled far and distant places preaching his message. He also visited the courts of famous rulers like Ajatashatru and Bimbisara. In the previous chapter we read about him, Ajatashatru and Bimbisara. तो इनके कोर्ट में भी ये गए थे. Now, teaching of Mahavira. Mahavira taught a simple teaching of Mahavira पे आइए. Mahavira taught a simple doctrine to attain knowledge and enlightenment. He preached that man and woman who wish to know the truth must leave their homes. उन्होंने क्या बोला? जिसको भी नॉलेज प्राप्त करनी है, इस जीवन की सच्चाई को जानना है, उसे क्या करना होगा? अपने घर को छोड़ना होगा, त्याग करना होगा. आई बात समझ में? He believed in leading a simple life. He was against rituals and sacrifice. वो किसके against थे? Rituals और sacrifices के. वो कोई भी rituals वगैरह follow नहीं करते थे. Like the Buddha, ये भी बुद्धा की तरह ही थे. Mahavira laid a great stress on अहिंसा. महावीरा ने भी किस पे ज्यादा जोर दिया? अहिंसा पे. But he was more strict. He believed that every living being had a soul. उनका क्या मानना था? ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे. उनका ये मानना था कि हर एक लिविंग बीइंग की सोल होती है, आत्मा होती है. Therefore, not even an insect. वो क्या कह रहे थे कि हमें तो एक इंसेक्ट को भी नहीं मारना चाहिए. Mahavira preached that the main aim of human being in their life is to set the soul free and not to be born again in this world. To achieve this, Mahavira taught Triratnas or the three jewels of the life. महावीरा ने कहा कि हर मनुष्य जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि मैं आजाद हूं और मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा भी फ्री हो जाए और मैं दोबारा इस धरती पे जन्म न लूं, मैं त्याग लूं, मोक्ष प्राप्त की मुझे हो जाए. इसलिए उन्होंने 3 रत्न बताए, 3 ज्वेल्स बताई हैं. कौन कौन सी हैं देखिए. What are the 3 रत्न or 3 jewels of life? Right knowledge, right belief and right action. सच्चा ज्ञान, सच्चा बिलीफ मतलब मान्यता और सच्चा एक्शन मतलब सही कार्य करना. Mahavira laid down certain rules for his followers who were known as the Jainas.
They had to lead a very simple life by begging for food. They had to be honest and were asked not to steal. Man had to give up all worldly things, even their clothes. Men were not allowed to even wear their clothes. उन्होंने त्याग दिया, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया. It was very difficult for most men and women to follow their strict rules. उनके इतने strict rules का पालन करना, उनको follow करना लोगों के लिए आसान काम नहीं है. But many people leave their homes to learn and teach this new way of life. लेकिन काफी लोगों ने उनको follow किया, अपनी जिंदगी को नया रूप दिया, बहुत कुछ उनसे सीखा. Now, come to the next point, that is the spread of Jainism. Jainism को कैसे इन्होंने फैलाया, कैसे spread किया. Language played a very important role in the spread of Jainism. Like the Buddha, Mahavira taught in Prakrit language. Which language? Prakrit language. कल भी हमने पढ़ा था जो बुद्ध भगवान थे वो कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाते थे? मगधी प्राकृत लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज में? और जैनिज्म में जो महावीर भगवान थे ये पढ़ाते थे प्राकृत लैंग्वेज में. कौन सी लैंग्वेज में? A language that was very common and spoken by the majority. Make it underline. जो लोगों को समझ में आए, जो लोग बोल सके और जो समझ सके उसी लैंग्वेज में वो अपनी स्पीच दिया करते थे. नहीं तो कैसे समझ में आएगा? आप लोगों को समझ में आएगा किसी और लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो नहीं आएगा ना. तो हम वही कॉमन लैंग्वेज यूज में लेते हैं जो आप बोल सके और जो आप समझ सके. क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. The teaching of the Mahavira and his followers spread orally for several centuries before they were written down as text about 1500 years ago at the Vallabhi in Gujarat. The Jains later got divided into two groups. बाद में जो जैन्स थे वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? टू ग्रुप्स में. एक हो गए दिगंबर, the sky clad, those who do not wear any clothes, or the Shvetambars or the white clad, those who wear only white clothes. जैनिन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दिगंबर और श्वेतांबर. दिगंबर वो होते हैं जिसमें मैन जो होते हैं वो कोई भी कपड़ा धारण नहीं करते हैं, दे डू नॉट वेयर द क्लोथ्स. और जो वुमेन्स होती हैं वो सिर्फ व्हाइट साड़ी से अपने को कवर करती हैं. और जो श्वेतांबर्स होते हैं उसमें मैन और वुमेन दोनों ही क्या करते हैं? व्हाइट कपड़े पहनते हैं. आगे चले. नो, विहारास, मोनेस्ट्रीज. विहारास क्या होती है? मोनेस्ट्री, जहां पर ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. विहार करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. To preach their religion, both Buddhists and the Jain bhikkhus used to wander from place to place throughout the year, giving lectures and teaching people. During the rainy season, it was difficult to travel, so they preferred to stay at one place. ये पूरे साल भर इधर से उधर घूमते हैं, अपने उपदेश देते हैं, लोगों को अपने लेक्चर्स देते हैं, टीचिंग देते हैं, लेकिन रेनी सीजन में ये एक जगह ही सेटल डाउन हो जाते हैं. Their followers and the supporters realized the difficulty and constructed temporary shelters for them. जो उनके फॉलोवर्स थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, वो वाकई में समझते थे कि रेनी सीजन में बिना शेल्टर के सरवाइव करना कितना प्रॉब्लम का काम होता है. तो उनके फॉलोवर्स ने क्या बनवा रखे थे? जगह जगह पे टेम्पररी शेल्टर्स और रूम्स वगैरह बनवा रखे थे, जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं धर्मशालाएं. होती है ना छोटी छोटी धर्मशालाएं स्टे करने के लिए मंदिरों में, वो बनवा रखी थी. Hills were chosen and the caves in them were transformed beautifully into viharas where the Buddhist bhikkhus lived. Earlier viharas were built of the wood. Later bricks were used to build them. पहले जो viharas वगैरह जो बनते थे, shelters जो बना करते थे भिक्खुस के लिए, वो किसके बना करते थे? वुड के. किसके बनाया करते थे? वुड के. उसके बाद ब्रिक्स के बनने लग गए, ईंटों के पक्के बनने लग गए. Kings and the traders frequently donated land for the constructing viharas. और ये viharas मतलब धर्मशालाएं, ये shelters जो temporary shelters हुआ करती थी उनको बनवाने के लिए किंग्स और जो नोबल पर्सन्स हुआ करते थे वो काफी पैसा डोनेट करते थे जिससे उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, हो सके. क्लियर है यहाँ तक सभी को? In Western India, several such viharas were excavated out of the Rocky Mountains. लेकिन बहुत सारे रॉकी माउंटेन्स वगैरह होने की वजह से ये विहारास कुछ तो है और कुछ खत्म हो गए. नाउ स्प्रेड ऑफ द रिलीजन्स, क्या पढ़ेंगे?
With time, Buddhism attacked many followers, including Mauryan Emperor Ashoka. With his help, the religion spread to different parts of the subcontinent and even Sri Lanka and Southeast Asia. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बुद्धिज्म ने काफी फॉलोअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. जैसे कहा जाता है कि जो मौर्यन एम्पायर थे, उनके राजा कौन थे? अशोका. अशोका ने तो जब लड़ाई करी थी, उनकी लास्ट लड़ाई, जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ मैंने कितने निहत्थे लोगों को मार दिया है, तो उन्हें बहुत रियलाइज हुआ कि मैं मेरे जीवन में क्या कर रहा हूं. और उन्होंने उसी वक्त सब कुछ छोड़ दिया, लड़ाई वड़ाई सब छोड़ दी उन्होंने. अपना राजमहल, अपना सब कुछ, सारी जितनी उनको लग्जरी लाइफ मिली हुई थी, उन्होंने वो सब छोड़ दी और बुद्ध भगवान के फॉलोवर बन गए. और बुद्ध भगवान के फॉलोवर सिर्फ अपनी इंडिया में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में भी है. Jainism was supported mainly by the traders. Farmers found it difficult to follow this religion path since they had to kill insects to protect their crops. अब जैनिज्म में जैन धर्म को फॉलो करना बड़ा डिफिकल्ट वाला टास्क है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से मच्छर को, एक चींटी को मार देना भी बहुत बड़ा पाप है. तो उन्होंने कहा फार्मर्स के लिए कि हम जैन धर्म को कैसे फॉलो करें. जब हमें क्रॉप कल्टीवेशन वगैरह करनी है तो क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसमें कीड़े भी लग जाते हैं. तो उन कीड़ों को मारने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है? पेस्टिसाइड्स. तो पेस्टिसाइड्स डालेंगे तो फिर कीड़े मर जाएंगे. और कीड़े मारना क्या है जैन धर्म में? पाप है. तो बोले मैं ये कैसे करूं, ये हम धर्म कैसे फॉलो करें. तो ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था फार्मर्स के लिए कि हम इसको कैसे फॉलो करें. Over hundred of years, Jainism spread to different parts of the North India, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka. It was also patronized by many kings. अब देखिए इसमें बुद्ध भगवान और जैनिज्म के लिए कुछ सिमिलैरिटीज दे रखी है और कुछ डिफरेंस भी दे रखा है. चलिए इसको हम पढ़ते हैं. देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या सिमिलैरिटी है. बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा. Both opposed Brahminical supremacy. They attracted the lower varnas, particularly the Vaishyas or the traders. Both were simple religious without any elaborate or expensive rituals and practice. दोनों rituals और practice को follow नहीं करते. दोनों ने सभी कास्ट को इक्वालिटी दी है. उन्होंने किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया. उनका यही मानना था कि अहिंसा में बिलीव रखते थे. दोनों हिंसा करने के लिए दोनों रेडी नहीं थे. और ये मोस्टली जो अपनी स्पीचेस वगैरह जो डिलीवर करते थे वो कौन से लैंग्वेज में करते थे? कॉमन लैंग्वेज में. वहां के लोग जो उसको समझ सके और सुन सके, समझ सके. ठीक है. इसमें डिफरेंस क्या है? प्राकृत लैंग्वेज, नॉट संस्कृत, सॉर्ट ऑफ हिंदी बट इन अ डिफरेंट वे. ठीक है. थोड़ा सा इनका जो टंग है वो थोड़ा डिफरेंट चलता है. ठीक है. प्राकृत लैंग्वेज हो गई आपकी कॉमन लैंग्वेज. पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो रीजनल लैंग्वेज सॉर्ट ऑफ. differences. Jainism stress on strict non-violence while Buddhism avoid extremes. Buddha stays away from discussion on God while Mahavira denied his existence altogether. Jainism was much too strict as compared to Buddhism. Buddhism spread beyond India while Jainism remained confined to the certain areas to India itself. चलिए असेसमेंट करते हैं. असेसमेंट पे आइए. Mahavira had great stress on अहिंसा. आंसर क्या आएगा इसका? अहिंसा. Which of the following is incorrect regarding Mahavira? C. He believed that every living being had a soul. He favored rituals. He favored rituals and sacrifices. That is incorrect. D1 is incorrect, right? So what is the answer? D. First is ahimsa and second is D. Not C, it's D. Materialistic ideas पढ़ते हैं. एक स्टोरी आ रही है, हम एक स्टोरी रीड करते हैं, राइट?
There was a man named Raj. He loved collecting expensive thinking they would make him happy. His house was full of treasures. Everyone is got it? What we are reading? We are reading about a man whose name is Raj. He used to collect very expensive things, and by collecting this, he feels that he must be very happy. Every weekend, Raj would go around the town looking for special and expensive items to add to his collection. He loved it when people admired his possessions, and it made him feel how important he was. By doing this, by collecting these unique items, he feel very happy and he feel very proud at that time when the people admire him. लोग जब उसको admire करते थे तो उसको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था, उसको लगता था कि मैं वाकई में बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ. But inside he felt a strange emptiness. लेकिन उसको अपने मन के अंदर बहुत कुछ खालीपन नजर आता था. क्या खालीपन नजर आता था? He felt like there was something missing, something that could not be bought. उसको हमेशा ये लगता था उसके मन में कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ खालीपन है जिसको मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा. One day he met an old man in the park. The old man said real richness comes from kindness and love. उन्होंने उसको क्या समझाया कि रियल रिचनेस कैसे आती है? जिस दिन आप कुछ अच्छा काम करोगे, किसी को प्यार करोगे, किसी के साथ आप काइंडली बात करोगे, किसी की हेल्प करोगे तो आपको मन में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है. क्या हमें नहीं मिलती है? अगर हम किसी पुअर की या बैगर की हेल्प कर देते हैं, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है तो हम कितने खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वो फीलिंग, उन्होंने कहा वो फीलिंग जिस दिन आपको आ जाएगी उस दिन आप सबसे ज्यादा रिच होंगे. Raj realized he had been missing out on what truly matters. Raj realized that sharing and caring were even more important than materialism. उसने कहा कि सामान इकट्ठा करने से ज्यादा तो किसी की हेल्प करना और अपनी चीजें किसी के साथ शेयर करना वो ज्यादा मुझे सुकून दे रहा है. मेरी जो लाइफ में एक एम्प्टीनेस थी वो फुलफिल हो रही है. His heart became the greatest treasure. उसका दिल ही बहुत बड़ा खजाना बन गया था अब उसके लिए. And he found real joy in simple moments with people he loved. हर एक मोमेंट उसके लिए बहुत हैप्पी मोमेंट बन गया था जब से उसने लोगों की केयरिंग और शेयरिंग करना स्टार्ट किया. इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ चीजें कलेक्ट करने से ही हम बहुत रिच नहीं बन जाएंगे. आप में एक आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर इतना अच्छा होना चाहिए कि आप किसी की हेल्प कर सकें. अगर आज आपने किसी की हेल्प करी है तो वो आपकी तारीफ करेगा तो उससे क्या होगा? आपको ज्यादा खुशी मिलेगी. मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राइट? तो वो इंसान ज्यादा रिच है एज कंपेयर टू कलेक्टिंग थिंग्स. एनी डाउट? आगे चले. अब यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक का मतलब बताया है. मेटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? मेक इट अंडरलाइन. मेटेरियलिस्टिक वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड मटीरियल. मटीरियल मतलब सामान, कोई भी हार्ड थिंग, कोई भी सॉफ्ट थिंग जो फिजिकली विजिबल हो, which means a substance that is used to make anything. Materialistic thought refer to those thought in which priority is given to the things that we can feel with our sense. In these thought, the main focus is on getting money, gadgets, and other worldly pleasures. According to these philosophies, the ultimate goal of man is to attain happiness through physical items. आज हमें क्या मिलती है? इन फिजिकल आइटम से आज हमें क्या मिलती है? हैप्पीनेस. आज पापा नई कार लेकर आए, क्या हुआ? खुशी मिली. लेकिन उसमें किसी जरूरतमंद को कहीं दूर छोड़कर आए हो आप तो वो ज्यादा खुशी होगी कि आज आपने अपनी गाड़ी में बिठा के आपने किसी की हेल्प कर दी. बोलो. आज आपने नए कपड़े खरीदे लेकिन वही कपड़े या आपके थोड़े से पुराने कपड़े आपने किसी नीडी पीपल को या नीडी बच्चे को दे दिए, वो खुश हो गया, तो आज आपका दिन कैसा रहेगा? खुश रहेंगे हम, प्राउड फील करेंगे कि आज हमने किसी की हेल्प करी. लगेगा कि नहीं? आज आप कुछ खा रहे हो
और कोई नीडी है, अगर आपने उसको कुछ खिला दिया तो आप उसको और क्या पूछते हो, और कुछ खाएगा? हाँ? खा ले, पेट भर के खाओ, भूखा नहीं रहना। तो वो मोमेंट हमारे लिए बड़ा खुशी वाला होता है कि हम उस मोमेंट पे मतलब खो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि आज तो दुनिया का सबसे अच्छा दिन निकला मेरा। होता है कि ऐसा नहीं होता है? होता है। तो वो मटेरियलिस्टिक चीजें हम कलेक्ट ना करके अगर हम इस तरह से किसी की हेल्प करें तो वो ज्यादा खुशी देगा। चलिए आगे चलते हैं। A through examination of this history of the philosophical thought reveals that our country has a rich tradition of materialistic philosophy dating back to ancient time। लेकिन हम हमारे पुराने हिस्ट्री को अगर खोलें और देखें कि पुराने लोग कैसी पुरानी पुरानी चीजों को ट्रेजर करके रखते थे, संभाल के रखते थे, पुरानी और बहुत प्राइसलेस चीजें अगर हम कहें तो रखते थे। सब क्या था? मटेरियल ही था कि नहीं? मटेरियलिस्टिक है ना सब कुछ। Here are some key aspects of materialistic ideas. Materialistic ideas are all about thinking that the things you have and the experience you enjoy are the most important in life. Materialistic feels that getting and having things like money, property, fancy item is what make you successful and happy. नई कार, नई पैंट, नए शूज, हाई ब्रांडेड शूज, हाई क्वालिटी शूज, ज्यादा प्राइस के शूज, तो आपको क्या लगता है वो फील के पहन के बड़ा प्राउड फील होता है, मेरे शूज बहुत महंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं पैसों से किसी जरूरतमंद को कुछ दे दोगे, कुछ खिला दोगे, कुछ बांट दोगे तो वो ज्यादा आपके लिए होगा, खुशी का मोमेंट होगा कि नहीं होगा? मटेरियलिस्टिक आइडियाज says that it is the most important to have fun and feel good in life. मटेरियलिस्टिक लाइफ आइडिया जो है आपको ये कहता है कि ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास हो जो आपको अच्छा फील हमेशा करवाता रहे। मटेरियलिस्टिक आइडियाज देखते हैं थोड़े से, आइए। मटेरियलिस्टिक आइडियाज पढ़ते हैं। लोकायत, लोकायत is a philosophy that focus on the things we can see and touch in our current life. लोकायत क्या होता है? ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, इसका मतलब। आजीविका believe that everything in the world is already decided and cannot be changed. आजीविका मतलब जिंदगी भर जो भगवान ने हमारे लिए डिसाइड किया है, जिसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। सांख्या मतलब, सांख्या philosophy is to help people find freedom from suffering through rational thought. सांख्या ऐसी फिलॉसफी है जिसमें आप अपने आप को आजाद महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प करें। क्या करिए कभी किसी ने हेल्प? करते हैं, मौका मिलता है तो करते रहना, हमेशा करते रहना। विशेषिका purpose was to help people understand the material world into systematic way. विशेषिका मतलब होता है जिसमें आप लोगों की हेल्प करें उसको समझाने के लिए कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी कुछ होता है। चल असेसमेंट करते हैं, जल्दी से आ जाइए। अकॉर्डिंग टू मटेरियलिस्टिक आइडियाज, which aspect of often considered a measure of success and fulfillment? Possession of materialistic thing. लगाइए, possession of materialistic thing. B. Importance of the new thought and their relevance in the contemporary society. The emergence of new thought and ideas like Buddhism, Jainism, and the materialistic philosophies in ancient times had significant impact on both the societies of their time and continue to be relevant in contemporary society. Importance of Buddhism. Buddhism taught the importance of kindness and non-violence. It encouraged people to treat others and all living
It encourages people to treat others and all living beings with respect. Buddha's teaching help people understand the cause of suffering and how to overcome it through the Four Noble Truths and the Eightfold Path. इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि कैसे अपना इंसान अपने डिजायर को छोड़ के अपनी सफरिंग से भी फ्री हो सकता है. बुद्धिज्म प्रमोटेड मेडिटेशन. बुद्धिस्ट भगवान ने किसको प्रमोट किया है? मेडिटेशन. हर मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? मेडिटेशन, भगवान में ध्यान लगाना चाहिए. विच इज अ टेक्निक टू काम द माइंड. ये एक यही तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं. रिड्यूस स्ट्रेस. इससे क्या होगा? स्ट्रेस दूर होगा और आपको एक मन की शांति मिलेगी. It emphasizes the idea of karma, which mean out actions have consequences. This help people make good choices. उन्होंने क्या सिखाया कि आपके जीवन में आप जिस तरह के कर्म करेंगे उसी का ही रिजल्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका फल आपको अपने जीवन में अवश्य मिलेगा. अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल ही मिलेगा. आई बात समझ में? इसलिए हमें अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए, अच्छे अच्छे शब्द बोलने चाहिए. तो क्लास, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. तो क्लास 6 वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है? So what you have to do its word meaning in your copy and find out the short question answers also.